Good morning, children. Today I am going to teach you the same chapter, Let Us Communicate. In the last chapter, I have taught you what do you understand by the word communicate and what are the forms in which you can communicate, right? Today I will teach you how communication has changed over the time period. So come children, let's learn. So children, let's learn changing times. The way people communicate has changed with time. See, the way how people used to communicate in the earlier days, we don't communicate in the same way right now. It has changed, okay? In olden days, people communicated with the help of smoke signal, pigeons, and by beating drums. You know, when So children, in earlier days, people used to give smoke signal, like they used to light a fire and then they used to drape, put a wet cloth on top of the fire and then remove it, then put it again and remove it. ऐसे करने से क्या होता था, धुआं होता था और वो धुआं एक इशारा होता था. ठीक है, वो पहले आग लगाते थे, फिर गीले कपड़े से धुआं बना के ऊपर छोड़ते थे. दूर से लोग देख के भी समझ जाते थे, उनका एक इशारा होता था, वो समझ जाते थे. दे यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय पिजन्स. एक कबूतर के पाँव में एक चिट्ठी लिख के वो भी, यहाँ पे देखो कबूतर के पाँव में चिट्ठी होगा, तो वो लोग क्या करते थे, कबूतर के पाँव में चिट्ठी बांध के उसको उड़ा देते थे, तो वो एक जगह से दूसरा जगह जाके चिट्ठी पहुंचा देता था. सो द पिजन व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू कैरी द लेटर्स from one place to another and they used to even beat drums. Okay, नगाड़ा बजता था ना जब राजा महाराजा का टाइम था, सुनो 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 गांव वासी सुनो, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू से, ऐसे डिक्लेयर करते थे ना, नगाड़ा बजा बजा के वो लोग कम्युनिकेट करते थे. ओके, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ है, नाउ इन द रिसेंट past, how we are communicating nowadays, people communicate using a variety of means as shown below. अब कैसे communicate हम लोग करते हैं, with the help of a television. We communicate with the help of a television, with the help of computers, with the help of mobile phone, with the help of letters, with the help of radio, with the help of book and newspaper and many more, right? Television, radio, computer and mobile phones are some of the fastest means of communication this day. यहाँ पे अपने टेलीविजन में एक खबर आया, पूरा दुनिया भर को पता चल गया, right? तो that means it's the fastest means or the mode of communication. एंड कंप्यूटर में आपने यहाँ अभी चिट्ठी लिखा और ईमेल किया और तुरंत अमेरिका में जाके आपका चिट्ठी पहुँच गया, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. मोबाइल से आप चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, आप जाके क्या करते हो, इंडिया से बाहर भी एक क्षण में आप लोग बात कर लेते हो, तो बहुत जल्दी हो जाता है. एंड देन हाँ ये सब रेडियो में आप अभी एक कुछ समाचार सुनते हो तो सारा दुनिया वो समाचार सुन जाता है, राइट? सो इट्स द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. वैसे चिट्ठी, द लेटर इज़ द स्लोएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे धीमा है, बहुत धीरे रफ्तार से जाके पहुंचता है. तब तक तो शायद आप भी पहुंच जाते हो उस बंदे के पास. Which of the following is not a way to communicate? Speaking, watching, typing, sleeping. By speaking, you communicate. Yes. By watching TV, you communicate. True. By typing a letter, you communicate. Yes. Sleeping. When you are sleeping, that is the only time when you are not communicating. Okay? Which of the following is not a usual mode of communication these days? Television? No, it is a mode of communication these days. Books, yes, it is a mode of communication. Smoke signal, no. We don't send any smoke signal anymore. This is not the mode of communication now. Mobile phone, yes, it is. Now children, what is personal communication? Personal communication होता क्या है? जब आप किसी से मिलते हो, हाय हेलो करते हो, that is your personal communication. एक वन ऑन वन बात करते हो, एक बंदा सामने से बोल रहा है, आप सामने से बोल रहे हो, तो तभी आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो. जैसे कि पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए दो इंसानों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बोलोगे तो दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा तो आप सुनोगे. कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. दो बंदों के बीच बातचीत जब होती है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है. शोभित इज स्पीकिंग विद हिज नेबर. शोभित फ़ोन में किसी से बात कर रहा है ना, किसी से, नो सॉरी, शोभित अपने नेबर से बात कर रहा है, मतलब ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है.
आर्यन इज टॉकिंग टू हिज ऑन्ट ऑन द मोबाइल फ़ोन। आर्यन अपने ऑन्ट से मोबाइल फ़ोन, ऑन्ट मतलब आंटी, ठीक है। आर्यन अपने मोबाइल फ़ोन से अपने आंटी के साथ बात कर रहा है। तो ये है पर्सनल, वो 10 लोगों को नहीं सुना रहा है, वो सिर्फ आंटी से बात कर रहा है। सो दिस इज पर्सनल कम्युनिकेशन। पवन इज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड ऑन द कंप्यूटर। पवन अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा है कंप्यूटर पे, तो वो क्या कर रहा है, पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। नैना इज राइटिंग ए लेटर टू हर ग्रैंड मदर। नैना अपनी दादी माँ को चिट्ठी लिख रही है, तो वो क्या कर रही है, पर्सनल कम्युनिकेशन कर रही है। ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये सारा पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब हम एक मास को एड्रेस करते हैं, एक ग्रुप को एड्रेस करते हैं, एक कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, उनके साथ हमें कुछ मैसेज उनके पास पहुंचाना होता है, तभी उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे कि आप न्यूज़ देखते हो टीवी में, तो वो क्या करता है, वो ना आपको एक वेदर फोरकास्टिंग होता है, आपको याद है, वेदर फोरकास्टिंग में वो सारे जगहों के बारे में बताते हैं, तो वो सबको पता चलता है पूरे इंडिया भर में और दुनिया के बाहर, इंडिया के बाहर भी अगर कोई टेलीविजन देख रहा है, सबको पता चल जाता है कि भुवनेश्वर में क्या टेम्परेचर है, दिल्ली में क्या टेम्परेचर है, कलकत्ता में क्या टेम्परेचर है, सबको पता चल जाता है, राइट। मतलब एक मास को, एक ग्रुप को हम लोग, या फिर कुछ बहुत सारे लोगों को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जब हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं एक ही वक्त में, उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। द न्यूज़ रीडर ऑन द टेलीविजन इज टेलिंग अबाउट टूडेज वेदर। देखिए, टेलीविजन में न्यूज़ रीडर आज के तापमान के बारे में बता रहा है, आज के वेदर के बारे में बता रहा है, तो वो एक ग्रुप को और या फिर बहुत सारे लोगों को वो एड्रेस कर रहा है। There is an advertisement on the radio about a new chocolate in the market. मार्केट में एक नया चॉकलेट निकला है जिसका एडवर्टाइजमेंट रेडियो में हो रहा है। तो जो सब रेडियो सुनते हैं उन सबको पता चल गया कि मार्केट में एक नया चॉकलेट आया है, राइट। तो बहुत सारे लोगों के पास मैसेज कन्वे हो गया है। रवि इज रीडिंग अबाउट गुड हैबिट्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में रवि अच्छे बर्ताव के बारे में पढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसको जो ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं सबको कम्युनिकेट हो रहा है मैसेज, ठीक है। नाउ इशिका इज वॉचिंग अ मूवी विथ हर पेरेंट्स। देखिए, एक टार्जन देख रही है इशिका। टार्जन जो सब हॉल में देख रहे हैं या फिर टीवी में देख रहे हैं, सबको कम्युनिकेट हो रहा है वो सेम स्टोरी। सो इट इज़ ऑल्सो अ मास कम्युनिकेशन। Today's newspaper has a write-up on the Republic Parade. रिपब्लिक परेड के ऊपर एक राइटअप है जो कि आज के न्यूज़पेपर में लिखा है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सबको यह खबर मिल जाती है, राइट। दिस बुक ऑन हेल्थ इज रेड बाय मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक बुक पढ़ रही हैं जो कि हेल्थ के ऊपर है, और जो भी ये बुक पढ़ रहा है सबको हेल्थ के बारे में पता चल रहा है। सो दिस बुक इज एबल टू कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके। ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सारा मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो चिल्ड्रन, आशा करती हूँ आपको समझ में आया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग, इमोशन एक्सेट्रा। Or what is personal communication? When there are two people who are needed to do a personal communication. When you communicate face to face with someone, that is also called as personal communication. Or maybe you write a letter, or you call a person, or you chat with a person, then also that is personal communication. What is mass communication? Mass communication is done through television, radio, computer, newspaper, etc. when you address a mass of people or many number of people at a time. So hopefully children, this message was clear to you. In case you did not understand anything and you still have a doubt, you can clear the doubt in the live classes that I am taking, or you still have a doubt, feel free to give me a call and ask me, ma'am, I could not understand this thing, can you please make me understand it? I will definitely try my best to make it understand to you in a different way, okay? Till then, bye bye, take good care of yourself, God bless.